three kinematical equations, you know, even from your 9th standard. Few things of 9th and 11th you will find are common. So three kinematical equation, those who have joined newly, they also know. V is U plus AT, S is UT plus half AT square, and V square equals to U square plus 2AS. This everybody knows. I think you all know three kinematical equation. Yes. Yes. Yes, sir. But if motion is in gravity, then acceleration is G, where G is acting downward or upward? Say downward. Downward. So that is G. Minus G. Always I will write A is minus G, since it is acting downward. ये convention है. Sir, retardation, no? No. Retardation means it is decreasing the speed. Here I am using G as convention for vector. When body is coming downward, velocity will increase. Velocity will increase. So actually it is not retardation. We are using convention, A acting always downward, then negative, upward, positive. So अभी ये confusion मत रखना. Always gravity acting downward will take as minus G in my formula. Now once again I am reading that sum. Number 30 it was, na? Yes. Yeah. Once again, Isha, Pranjali, read once again. I think you had read that. Yes, sir. Read it again. A stone with weight W is thrown vertically upwards into air from ground level with initial speed V0. If a constant force F due to air drag Initial acts speed V0 or U0? V0. V0. हाँ, ठीक है. आगे. If a constant force F due to air drag acts on the stone throughout its flight, the speed of stone just before impact with the ground is. Okay. अब ये सब में क्या बोला, एक बॉडी है जिसका वेट W, उसको आपने ऊपर फेंका विथ वेलोसिटी V0, इनिशियल स्पीड. यही है ना क्वेश्चन? Yes. Yes, sir. Yes, sir. What is air drag acting given? हेलो, एयर ड्रैग F लिखा है, F है क्या? Yes. Constant force F is acting, which is air drag. What will be the time taken? What will be velocity when it is just impacting this? देखो ये तो डायग्राम के लिए मैंने ऐसा बनाया है, लेकिन एक ही लाइन में जाएगा और एक ही लाइन में नीचे आएगा. जनरली जिससे भी आप फेंकते हैं ना बॉडी, उससे ही नीचे गिरने वाला है. वो लेवल पे वेलोसिटी सेम रहता है. नाउ व्हाट इज सेम इन बोथ? कैन एनीबॉडी सजेस्ट मी? ऐसा कुछ चीज सेम है क्या दोनों में अदर देन V0? Constant force. फोर्स इज कांस्टेंट. वो लोग ने क्या बोला? वो ड्रैग है ना. F को बोला ड्रैग है. ड्रैग. ड्रैग किसको बोलते हैं इंग्लिश में? जो खींचता है ना किसको, तो है ना, ड्रैग उसी को बोलते हैं शायद. Yes, sir. हाँ, sir. दैट मीन्स व्हेन बॉडी इज मूविंग अप, ये ड्रैग नीचे एक्ट होएगा ना, एंड व्हेन बॉडी इज कमिंग डाउन, ड्रैग ऊपर एक्ट होएगा ना. इतना समझा आपको? Yes. ये कॉन्सेप्ट समझा? Yes, ड्रैग sir. मतलब जो हाँ, खींचने sir. वाला है. तो जब ये ऊपर जा रहा है तो नीचे खींचेगा, नीचे जा रहा है तो ऊपर खींचेगा. So in this case, while moving down, G किधर एक्ट हो रहा है? नीचे ना. Downwards. हाँ, sir. और इधर while coming down? Upwards. नहीं Upwards. नहीं बेटा, रॉन्ग. G तो नीचे ही एक्ट होगा ना. ड्रैग चेंज कर सकते हैं अपने आप को. मैं G का बात कर रहा हूँ. हाँ, sir, नीचे. G तो नीचे एक्ट होगा ना. Just draw the diagram and copy till this. Again I am telling, don't go for sums. कौन सा कर रहे हैं? अंडरस्टैंडिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट. और दो चैप्टर मैंने पहले भी बोला है, तक आपका पूरा फिजिक्स स्ट्रांग हो जाता है.
Just draw the diagram, then I'm explaining. Now can I clear everything? Yes, sir. चलो ठीक है, क्लियर कर देता हूँ. स्वराज, मोहित, hello, Swaraj and Mohit. Which motion, how many motion in this problem is only upward motion or only downward motion or both motion we have? Both, yes. मतलब ऊपर भी जा रहा है फिर ऊपर से नीचे भी आ रहा है. तो मैं बोलता हूँ for upward motion. In upward motion, G is acting downward, which is actually W is acting downward. W equal to mg ना, उसका वजन उसको नीचे खींचता है. ड्रैग भी नीचे ही खींच रहा है, F. फोर्सेस मास इनटू एक्सेलरेशन होता है. Getting me what I said? Yes, sir. Yes, sir. Very good. So what is net force acting here? Net force F plus W है ना net force, हाँ sir. which is M A plus mg ना, दोनों नीचे ही एक्ट हो रहा है इसलिए. Yes, sir. तो F plus W is M into A plus G एक्ट हो रहा है, मतलब है ना. A plus G. तो net acceleration is A plus G. Net acceleration A plus G, which is F plus W upon mass. ये एक्ट हो रहा है बॉडी के ऊपर. सबको समझा इधर तक? Yes, sir. Yes. हाँ. अभी मुझे बताओ, ये जब ये ऊपर जा रहा है तो क्या जीरो होने वाला है बाद में? ये जब ऊपर ऊपर जा रहा है, इसको इनिशियल वेलोसिटी v नॉट दिया, ये जाते ही रहेगा क्या? इधर तो रुकेगा ना. Yes. हाँ sir. उधर क्या होने वाला है? फाइनल Final वेलोसिटी. velocity. करेक्ट. Velocity 0. तो अपवर्ड मोशन में फाइनल वेलोसिटी इज 0. आई नो फॉर्मूला v स्क्वायर इज u स्क्वायर प्लस 2ax. a मतलब मेरा नेट एक्सेलरेशन. v तो 0 होने वाला है, u v नॉट किया 2. a मतलब नेट एक्सेलरेशन which is F plus W upon mass m. Acceleration is acting downward, तो ये पूरे को मैं माइनस बोलूंगा. नहीं समझ में आया? इधर तक समझा? Yes or no? हाँ. हाँ. ये नेट एक्सेलरेशन नीचे एक्ट हो रहा है इसलिए माइनस लिखा. F plus W upon m is net acceleration, downward तो नेगेटिव. हाइट इज h सपोज ऊपर तो प्लस. तो ये पूरा क्वांटिटी कैन आई ब्रिंग ऑन राइट साइड, तो प्लस में होगा ना, लेफ्ट साइड लाया तो ट्वाइस ऑफ हाँ sir. F plus W. Very good. M H is V naught square. Let this be equation 1. Write down this much. So it will be equation 2 now. Okay, sorry. मैं अपना सुन रही हूँ. नहीं बराबर बराबर, सबने बराबर सुना, टेंशन मत. So for upward motion, net force is F plus W acting downward, इसलिए उसका वजह से एक्सेलरेशन आया, उसको निगेटिव दिया मैंने.
Completed, then tell. Done. Okay, Sudden. very good. So upward journey का तो कहानी खत्म हो गया. V naught square we got 2 times F plus W upon M into H. अभी downward motion देखते हैं. For downward journey. For downward journey. This time what is zero? Initial or final? Sir, initial. Initial. और ये फाइनल जब इधर गिरेगा तो V नॉट ही रहेगा ना, बिकॉज सेम लेवल पे जिससे फेंकते उससे ही आता है बॉडी. हाँ सर. दिस टाइम वेर इज वेट एक्टिंग डाउनवर्ड, नो? Yes sir. एंड वेर इज द ड्रैग एक्टिंग Upwards. अपवर्ड. So what is net force now? Tell me. Net force. W minus F or not? हाँ सर. अभी आप बोलेंगे सर आपको कैसा समझा? W minus F minus W लिया तो, अगर F minus W लिया तो क्या होएगा आवाज? बॉडी नीचे कैसा गिरेगा ना, फिर तो ऊपर ही जाएगा ना. हाँ सर. तो नीचे गिरने के लिए नीचे वाला फोर्स ज्यादा चाहिए ना, इससे W minus F लिया. W means what? mg, and this is nothing but ma. So m common, g minus a, ये अपना नेट फोर्स हो गया. नेट फोर्स मतलब मास इनटू नेट एक्सेलरेशन. आई होप क्लियर. हेलो हेलो. Yes sir. Yes, sir. अभी v square, same formula I'm using, u square plus 2as. V is finally v naught, which we don't know. U is starting velocity is 0 plus 2. Net acceleration is acting downward, which is nothing but W minus F, where that is net force upon mass m. W minus force F upon m, जैसा ऊपर था वैसे ही नीचे किया इधर. M acting downward है resultant net acceleration. तो ये माइनस आएगा फिर से इधर टोटल. H is coming downward तो वापस ये भी माइनस है. माइनस माइनस will become plus. So V naught square is twice of W minus F upon M into H, equation 3. Dividing 1 by 2, we get what we want actually. Hello? Hello? Sir, speed of stone just Speed before of the the impact. stone. तो ये h का वैल्यू में फ्रॉम फर्स्ट वाले से डाल सकता हूँ क्या? स्पीड ऑफ स्टोन चाहिए तो h का वैल्यू. चलो इधर तक कॉपी करो, इधर तक कर लो पहले. Sir, done. वन स्मॉल चेंज यू मेक. नो चेंज, छोटा सा थोड़ा चेंज करना है, बताता हूँ क्या है. While coming down, इसको मैं v डैश बोल देता हूँ, नहीं तो दोनों सेम रहेगा, कैंसिल हो जाएगा ना. ये v डैश बोल देता हूँ so that it becomes more perfect. Now dividing 2 by 1 करता हूँ मैं, because मुझे सेकेंड वाला चाहिए.
So V1 square upon V0 square. 2 times W minus F H by M divided by, what is V0 square? Can you tell me? Is it 2 times W plus F? Yes. W plus F upon M, और ये H है ना? So can we cancel this H by M? H by M 2 2. So we get V1 square is equals to V0 W minus F upon W plus F, V0 square. Taking square root, it is V0 W minus F upon W plus F, दोनों का पावर हाफ, एक साथ लिया तो पावर इज हाफ, हाफ मतलब स्क्वायर रूट. So this is the required answer. पूरा समझा? हेलो? Yes, sir. देखो Yes, इसमें समझने का क्या था, while moving up ड्रैग और W एक ही डायरेक्शन में, एंड while coming down वेट तो अपना डायरेक्शन चेंज कर नहीं सकता है. ड्रैग मतलब जो मोशन को खींचता है, तो अभी नीचे आते समय वो ऊपर खींचेगा. तो सेकंड में F ने अपना डायरेक्शन चेंज कर लिया. W cannot change, weight is always downward. This was bit interesting sum, JEE का टाइप का sum. Then which sum you said after this? 34 ना? So someone said 33. 30, हाँ 33 also somebody said, yes. 33, beautiful sum, 33. 33, 34, both are actually beautiful sums. 33 and 34. So first you tell me this we've completed, then I will go to 33. Yes, sir. Yes, sir, completed. Completed. Very beautiful sum, those one who has asked, one of the best sum which I like this. 33. Relation between t and x is given by t equals to ax square plus bx. Then what is acceleration if a and b are constant? Superb sum. See, this is t and x relation. जब भी ऐसा होगा ना, one function depends upon other, तो या तो ये डेरिवेटिव होता है या तो ये इंटीग्रेशन होता है. So t equals to ax square plus bx. Then obtain the acceleration. What I know from my mind, acceleration is rate of change of velocity. ये आपको भी मालूम है, खाली 11th में मैथ्स में ये डेरिवेटिव भी बोलते हैं इसको. This is also called as derivative of v. And velocity को बोलते हैं rate of change of displacement. dx by dt. हाँ, dx by dt, इसको वेलोसिटी बोलते हैं. मतलब मैं पहला x का डेरिवेटिव कर सकता हूं तो v आएगा, फिर v का डेरिवेटिव किया तो a आएगा. a मतलब एक्सेलरेशन. इधर तो ऊपर t दिया है, कुछ फर्क पड़ेगा नहीं. मैं बोल देता हूं डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू t. अभी जो नए आए हैं उनको याद रखो, ये d बाई dx को बोलते हैं डेरिवेटिव. उसका एक फॉर्मूला है, अगर पावर x रेज टू n होएगा तो n x रेज टू n माइनस 1. दिस इज फॉर्मूला फॉर डेरिवेटिव. d बाई dx ऑफ x रेज टू n, पावर मल्टीप्लायर हो जाता है और एक से कम n माइनस 1. तो ये t का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू t कर रहे हैं, मतलब ऐसा लिखना पड़ता है d बाई dt ऑफ t का पावर 1. Karan, you tell me what will be derivative of t raised to 1? So 0. Derivative will be 0. Think and say. Power becomes multiplier, मतलब 1. t raised to 1 minus 1, तो 1 आएगा ना? Yes, sir. 1. 1 आएगा. 1. अभी ये a कांस्टेंट है, x स्क्वायर का डेरिवेटिव होता है 2x,
साथ में इसको dx by dt लिखना पड़ेगा, क्योंकि इसको विथ x नहीं किया, विथ e किया, तो ये एक्स्ट्रा टर्म आया, प्लस b dx by dt हो गया। बट अभी आपको बताया मैंने व्हाट इज dx by dt कॉल्ड, वेलोसिटी ना। वेलोसिटी। हाँ, तो ये 1 इक्वल्स टू 2ax इंटू वेलोसिटी प्लस b इंटू वेलोसिटी मिला, दैट मीन्स वेलोसिटी इज कॉमन, 2x प्लस b वेलोसिटी मिला। इधर तक कॉपी करो, मस्त समय ये मैथ्स है पूरा। t का डेरिवेटिव मतलब t का पावर 1, तो ये मैंने रफ में इधर दिखाया है कैसे आ गया फॉर्मूला ऑन द राइट हैंड साइड। और जो भी लेट ज्वाइन किए डरो मत, आपका मैं बहुत एक्स्ट्रा लेक्चर रख के सेम लेवल पे लेके आऊंगा। Moment to complete, please let me know. Sir, done. Okay. No, sir, just a second. Yeah, no, only right side I'm erasing that. Please practice this sum at least 5 times, तो आपको एकदम दिमाग में कॉन्सेप्ट बैठ जाएगा, क्योंकि दो है इधर, मैथ्स भी है इसमें, मैथ्स एंड फिजिक्स बोथ आर देयर इन दिस सम। So from this you can say v is 1 upon 2ax plus b. Let this be my equation 1. Everybody has followed till this? V equals to 1 upon 2x plus b. Yes, sir. Yes, sir. Okay. Mohit, you have followed? Yes, sir. देखो किसको भी नहीं समझा तो आप लेक्चर के बाद भी पूछ सकते हैं, रुक के, डोंट वरी। बाय टेकिंग t का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू t 1 मिला, x स्क्वायर का पावर मल्टीप्लायर 2 माइनस 1 1, तो x रेज टू 1, बट ये विथ रिस्पेक्ट टू x नहीं है, इसलिए dx by dt एक्स्ट्रा टर्म आ गया। सेम वे b एज इट इज x का dx by dt, but we all know rate of change of velocity with respect to time is called velocity. So 1 equal to 2ax velocity plus bv, v common 2x plus b लिया, तो v आ गया 1 upon 2x plus b, इक्वेशन 1। बट मुझे तो एक्सेलरेशन चाहिए, एक्सेलरेशन कैसे निकालूं अभी? Sir, dv by dt. dv by dt, और भी एक फॉर्मूला है, एक तो dv by dt बराबर बोला आपने, और भी एक फॉर्मूला है एक्सेलरेशन, इधर लिख के बताता हूं, dv by dt। If I multiply by dx, divide by dx तो भी चलेगा ना? What is dx by dt? Sir, v. Velocity. v, तो it is v dv by dx v, दो फॉर्मूला है उसका, dv by dt और v dv by dx। तो I will prefer this because ये v in terms of x है ना? हेलो? Yes. हाँ सर। तो अपना एक्सेलरेशन का दो डेफिनेशन है, dv by dt और dx by dt, sorry, v dv by dx. This we have written earlier, I think. So since acceleration is v into dv by dx, so a equals to, आंसर मुझे v में चाहिए तो इसको एज इट इज रखता हूं, d by dx of v which is 1 upon 2ax plus b. Please copy again till this, दो ही लाइन या तीन लाइन, फिर आगे फिर से समझाता हूं।
Nandini, understood? Yes, sir. Yeah. So these are not very easy sum, but yes, interesting है ना, मजा आता है ऐसा. राजवर्धन, स्वराज, क्षितेश, कुछ डाउट लग रहा है? No, sir. हाँ, देखो डाउट नहीं लगना चाहिए, ये लगना चाहिए कि ये सम टफ No, था, sir. कोई समझा दिया तो समझ में आ जाएगा. ऐसा हो गया तो फिर बस हो गया, यू आर गोइंग इन राइट ट्रैक. Just copy these 3 lines. कंप्लीट हो गया होगा ना, दो ही तो लिखने का था आपको लाइन. Yes, sir. Yes, हाँ sir. सर, डन डन. अभी एक मैं आपको फॉर्मूला पहले समझाता हूँ. यू डोंट राइट है, जस्ट लिसन. जो नया है उनके लिए ये डेरिवेटिव का फॉर्मूला है nx रेज टू n माइनस 1. अभी एक एक करके मैं पूछने वाला हूँ, आपको आंसर बताना है. इफ x रेज टू 2, आर्यन बागवे, आर्यन बागवे, Yes, sir. Yes, sir. व्हाट इज पावर हियर? 2 2. तो अपना फॉर्मूला में क्या आएगा? ये 2 x रेज टू 2 माइनस 1, minus 1 मतलब 1 2x हो गया ना. फिर 2x हो गया. हाँ sir. राजवर्धन, Yes, sir. इसका क्या आएगा बेटा? Sir, 6 into x upon 6 minus 1. 6 into x अपॉन नहीं, रेज टू, Sorry, raised to 6 minus 1. तो 5 हो गया ना. फिर Yes, sir. चलो संदेश, Yes, sir. व्हाट विल बी, खाली इसका डेरिवेटिव x से ही है. x पावर क्या इधर कुछ नहीं है तो 1. 1 है, तो क्या आएगा ये 1 इंटू एक्स रेज टू 1 माइनस 1 एक्स रेज टू 0 मतलब 1 आ गया ना आंसर खाली. Yes, sir. चलो एक आगे और बताओ. अभी अवन यू टेल मी व्हाट विल बी डेरिवेटिव ऑफ 1 अपॉन x. सर एक मिनट. हाँ अब आया Sir, वो. -2. नहीं, सर वेट. ध्यान किधर है? 1 अपॉन x मतलब x. सर मैंने नहीं बोला. फिर कौन बोला मैंने माइनस? ऐसा पोपट मत करो, बराबर आंसर बोलो. डी बाई डी एक्स ऑफ 1x मतलब डी बाई डी एक्स ऑफ x रेज टू माइनस 1 और नॉट. हाँ सर, x to minus 1. पावर में आ गया तो आपको तो मालूम है ना, यू आर पावरफुल. -1 x रेज टू -1 सो -1 x रेज टू -2 मतलब -1 अपॉन x स्क्वायर और नॉट. यस सर. तो अभी याद रख लेना 1 अपॉन x का डेरिवेटिव क्या आता है? -1 अपॉन x स्क्वायर. ओके, यस सर. सबको समझा? न्यू स्टूडेंट्स को? Yes, sir. डेरिवेटिव ऑफ 1 अपॉन x क्या है? -1 अपॉन x स्क्वायर. Square. अभी अगर ऐसा रहता है ना कोई भी चीज y इज u प्लस v, अभी मुझे इसको डिफरेंशिएट करना है विथ रिस्पेक्ट टू x. तो ये dy बाई dx होएगा, ये du बाई dx होएगा, ये dv बाई dx और बीच में प्लस का प्लस रहेगा. ठीक है, इफ इट इज माइनस तो माइनस रहता है, बराबर. अगर sir. u इंटू v है तो कथन, यू नो दिस, u इंटू v को कैसे करेंगे? नो नेहा, वैभव, याद नहीं है? करण, अनय, एनीबॉडी? du upon dx into v plus u into dv upon dx. वीडियो बंद कर दो. कौन चालू कर दिया वीडियो? इसको v एज इट इज, तो पहला फर्स्ट वाले का डेरिवेटिव, फिर फर्स्ट वाला एज इट इज सेकंड वाले का डेरिवेटिव. ये फॉर्मूला है ना. u अपॉन v का फॉर्मूला ये है. फर्स्ट v एज इट इज, du बाई dx, बीच में माइनस आएगा, u इंटू dv बाई dx अपॉन v स्क्वायर. ये फॉर्मूला है. ये फॉर्मूला खाली देख लो किधर तो बुक में सब लोग, ये सब फॉर्मूला लास्ट पेज पे लिखा तो भी चलेगा. प्लीज राइट इट फास्ट.
Just write the formulas. Chalo, can I clear this? Yes, sir. Okay, सबका हो गया? हाँ सर. Yes, sir. Yes, अब sir. ये क्यों समझाया, आपको आइडिया आ जाएगा. Just now we got B as A equals to V, dV by dx था, तो d by dx of क्या लिखा है ब्रैकेट में, 2ax plus b ना. हेलो. Yes, sir. हाँ, Yes, तो sir. दिस इज a इंटू, अब ये 1/x के जैसा है ना बेटा, है ना, ये 1/x हो हाँ गया सर. ना. तो व्हाट इज 1/x का डेरिवेटिव, -1/x का X स्क्वायर. हाँ, लेकिन ये x नहीं है, x के साथ कुछ और भी है, तो इसको चेन रूल बोलते हैं. फिर से उसका डेरिवेटिव यू हैव टू टेक एवरी टाइम. दिस इज आवर रूल. -1/x square, then once again 2ax plus b का डेरिवेटिव you have to take. Now tell me, this is minus b as it is into, can you see 1/2ax plus b is nothing but b था, अभी प्रूफ किया थोड़ी देर पहले. 1/2x plus b क्या है, v है ना. हाँ सर. तो Yes, ये sir. मतलब ये पूरा 1/b का स्क्वायर हो गया ना. फिर तो ये ब्रैकेट देखो ऐसा था, v is 1/2x plus b, तो v square will be 1/2x plus b the whole square. तो इसको मैंने v square लिखा है Yes, ब्रैकेट को. यस, वेरी गुड. 2ax का डेरिवेटिव 2a, b का 0, 2 है सर. तो a equals to एक्सेलरेशन a equals to -2a v cube है क्या ऑप्शन, देखो 2a v cube है ऑप्शन में. ऑप्शन ए सर. हाँ, कितना सही सम है ना. ये कोई भी नहीं कर सकता है फर्स्ट अटेम्प्ट में, अनलेस अंटिल आपका मैथ्स और फिजिक्स दोनों स्ट्रॉन्ग. अभी धीरे धीरे हो जाएगा. डोंट टेक एनी टाइम एनी टेंशन यू हैव टू पास टू मी कंप्लीट फुल. जस्ट कंप्लीट दिस. So we got final answer, acceleration -2a v cube. This shows that you are actually doing the sums, because ये किसी को भी नहीं आएगा फर्स्ट अटेम्प्ट, मतलब अभी नहीं आएगा, 3 महीने के बाद आएगा जब भी आपने मैथ्स भी कर लिया है. Once done, please tell me, so that 34th also I am doing. So as per your target, you have done everything with proper doubt solving. Done. Okay. 34th. Sum number 34th. 34th. What is the question given? 34th. A particle, वही है ना, is हाँ सर. हाँ located. सर. A particle is located at x equals to 0 when t equal to 0, starts moving along positive direction with velocity v such that v is alpha times root x. Then displacement of the particle will vary with time as how much. मतलब मुझे x का रिलेशन चाहिए इन टाइम. We want x का रिलेशन इन टाइम.
मतलब x इज प्रोपोर्शनल टू t है या t स्क्वायर है या t क्यूब है या 3/2 ऐसा। फ्रॉम v वी आर इंटरेस्टेड इन x, तो पहला v का फॉर्मूला लिखूंगा dx/dt अल्फा रूट x। अभी dx से मुझे x निकालना है, तो नॉट डेरिवेटिव बट ये कोबरा चलता है, इसको बोलते हैं इंटीग्रेशन। सो व्हेनेवर यू आर इंटीग्रेटिंग समथिंग, सी टू इट दैट अगर x है तो dx चाहिए, y है तो dy चाहिए, t है तो dt चाहिए, नहीं है तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा दोनों साइड। तो इसको मैं रीअरेंज कर लेता हूं थोड़ा। दिस इज dx के साथ में x लाया, अल्फा कांस्टेंट है, इसको dt सेपरेट कर दिया। अभी x का साथ dx है, dt के साथ में t नहीं है, नहीं तो एज्यूम कर सकता हूं ना t रेज टू 0, एनीथिंग रेज टू 0 इज 1। नाउ integrating both sides we get, please copy only till this much, only till this much। dx upon root x is alpha dt। Done, sir. Okay, so this will become integration of dx upon root x, ये साइन को बोलते हैं इंटीग्रेशन, अल्फा कांस्टेंट था इनटू dt। व्हेन टाइम इज 0, वो लोग ने बोला x 0 है, तो टाइम इज सपोज t, मैं x को x बोल रहा हूं, इसको बोलते हैं लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन। क्या नाम है इसका? लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन, लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन। रूट x का मतलब ऊपर जाके x रेज टू माइनस हाफ होएगा क्या? नहीं, हाँ सर। root x means it will become x raised to minus half only, from 0 to x alpha dt from 0 to t। अभी t raised x raised to n dx का इंटीग्रेशन, डेरिवेटिव का तो मैंने बताया फॉर्मूला n x raised to n minus 1। this time this will become x का पावर n plus 1 upon n plus 1, ये मेथड। मतलब नॉट डिक्रीज बट इंक्रीज द पावर, नॉट मल्टीप्लाई बट डिवाइड, उल्टा सर है। प्लस सी। हाँ प्लस सी तो ठीक है, लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन होगा तो सी नहीं लिखते हैं ना, ये लिमिट दिखा है ना। हाँ सर। अभी पावर माइनस हाफ में प्लस 1 करो, क्या आएगा? माइनस हाफ प्लस 1, व्हाट इज माइनस हाफ प्लस 1? प्लस हाफ। हाफ सर। और इसको ही हाफ से डिवाइड, इसका लिमिट किधर से किधर तक? 0 to x अल्फा dt मतलब क्या? dt मतलब t रेज टू 0 dt, t का पावर 0, तो अपना फॉर्मूला में पावर 1 से बढ़ने वाला है इंटीग्रेशन में, डिवाइड बाय 1। सो कैन आई राइट t 1 अप पावर 1 तो सेम ही है, 0 to t। एनी डाउट इधर तक? No, sir. देखो जो नया है उनको हो सकता है डाउट, आप प्लस फिर बोल रहा हूँ वापस, आप टेंशन मत लो, मैं आपको हफ्ते में 3 दिन, जनरली ट्यूसडे थर्सडे सैटरडे अभी टाइम टेबल फ्रेम करता हूँ, आफ्टर द लेक्चर एक्स्ट्रा लेक्चर करके आपको इनके साथ लेके आता हूँ। कोई पीछे नहीं रहना चाहिए, सबको एक साथ दौड़ने का है। Now this 2 goes up, it will become 2 times x raised to half from 0 to x alpha t raised to 1 upon it's only t from 0 to t। How to solve this method is like this, 2 कांस्टेंट है बाहर लेके आओ, फिर ये वेरिएबल दिखता है ना जो, उसके जगह पे अपर वैल्यू फॉर्चुनेटली x है, बाद में लोअर वैल्यू 0 है रेज टू हाफ इज अल्फा,
फिर ये वेरिएबल t का जगह पे अपर वैल्यू t माइनस 0. So this is 2x raised to half equals to alpha t. That means if I square both sides, it will become 4 times x square is alpha square, sorry, x into t square. So x is alpha square upon 4 t square. That means x is proportional to t square. This is final answer. बहुत इंपॉर्टेंट सम है, हर एक वर्जन ऑफ एग्जाम में पूछते ही ऐसे टाइप का, whether it is CET, whether it is NEET, whether it is JEE main, whether it is BITS Pilani exam. Please copy till this. Once you complete, let me know. खाली 3 ही सम था लेकिन जबरदस्त है, जिसने भी डाउट पूछा तीनों सम. Done, sir. Okay. This Sunday's test you are knowing now what it is? Kinematics, sir. Yes, kinematics. MCQ. सबको लिखने का है, जो नए आए वो लोग भी. मार्क जाने दो, 0 मिला तो भी चलेगा मुझे. Attempt is very important. So 45 questions. 45 कम कर चुके थोड़ा. हाँ. नहीं 45 में क्यों दे रहा हूँ हाँ मेरे सर. पास. नहीं क्या होता है देखो, मैं टाइम बढ़ा दूंगा, सॉल्यूशन भी तो देता हूँ ना उसका, तो आपको ज्यादा सम मिलेगा ना प्रैक्टिस करने के लिए. चलो, कैन आई क्लियर दिस? Yes, sir. ठीक है. Sir. हाँ बोलो. क्या ये सवाल थे? Sir, मैंने नहीं नहीं सर, बोला. यस सर बोला, वो यस रह गया, सर सुनाई दिया. ठीक है सर. सिद्धेश, ओके. नाउ सी, एज पर दैट टारगेट व्हिच आई हैव गिवन यू, प्लानर में जो लेट आए फिर से रिसेंड कर देता हूँ, आपको दिखेगा क्या बोला था मैंने. सो टिल दैट एज पर प्लानर 35 एमसीक्यूज आज तक क्लियर हो जाना चाहिए ना अपना, वो जो मैंने दिया है उसका. हेलो. हाँ सर. Yes, sir. तो वी हैव कंप्लीटेड टिल डेट अपना पूरा वर्क. अभी मैं एक छोटा सा थियरी चालू करता हूँ, सो दैट जो नया है उनको लिंक लगेगा, नहीं तो सब नया लगते जाएगा. मोशन बताया था आपको, मैंने बताया था एक क्लास में सबसे स्मार्ट मैं ही हूँ, बताया था ऐसा. मोशन इज रिलेटिव टर्म. Yes, Sir, sir. yes, sir. ठीक है. फिर ये बताया था व्हाट इज सर्कुलर मोशन, नहीं बताया था. नहीं. चलो नया हेडिंग देखो बुक में अपना, सर्कुलर मोशन. हेडिंग सर्कुलर, चैप्टर इज सिंपल. एक बच्चा है वो ऐसा भाग रहा है स्ट्रेट लाइन में, ठीक है, सर्कुलर है. नो सर. No. लेकिन ऐसा गोल गोल घूम रहा है, रिंगा रोजेस. तो अभी कैसा घूम रहा है वो? सर्कल में ना. सर्कुलर. Yes. सर्कुलर, यस. तो सिंपल इंग्लिश में बोलूं तो मोशन अलोंग circumference of circle is called as circular motion. What is circular motion? Motion along circumference of circle. Motion along circumference of circle is called as circular motion. Write down. Motion along circumference of circle is called as circular motion. Done, sir. Okay.
radius vector. Radius vector. What is this called as? Geometry में ये क्या चीज? Circle. Circle. What is this called as? Center. Center of circle. Very good. Very good. So what is this distance called as? Radius. Yes. And this the distance? Radius. 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 So all radius are constant for same Yes, circle. sir. Yes, sir. Yes. Yes, sir. इधर मैं एक एरो बना देता हूँ तो क्या बन जाता है ये? एरो मतलब डायरेक्शन आ गया ना, हाँ सर. तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? रेडियस. Vector. हाँ, तो मैं इसको ऐसा बोलूं क्या चलेगा? क्या देख लेना जरा. अ वेक्टर drawn from center of circle to the position of particle performing circular motion. A vector drawn from center of circle to the position of particle performing circular motion is called as radius vector. It is a variable quantity. Why variable quantity? Direction is different, है ना? Even though magnitude yes, sir. is same. Yes. Anybody who has not followed this term radius vector? Everybody has followed? Yes, sir. Yes. Kathan, you were absent last Wednesday. I Yes. sent the link of that whatever I had taught. हाँ, okay. आपने देखा वो पूरा? कुछ डाउट आया? Sir, actually I have not seen because I have not turned on my mobile. अरे ऐसा मत करो, आपके लिए मैंने भेजा, आपने मोबाइल ही नहीं टर्न किया. I will get overturned then. Sir, on the group you have sent. हाँ, I think on the group only I have sent. Oh, yeah, sir. I'll just Just check it. Just check it because Yes, if I have not sent, I have to resend again. Then. yeah. ठीक है, करो. देखो आपका कोई भी बीमार पड़ता है ना, तो एक वीक के अंदर वो अपना डाउट क्लियर कर लो बाय कॉलिंग मी. नहीं तो एक बार हम Yes. बीमार पड़ते हैं ना तो तकलीफ है ना, समझ में नहीं आता है फिर आगे. Yes, sir. ठीक है. देखो ये आपके बैच का मेरा सपना है सबको अबव 85 मिलने के लिए Yes. इन 12th एंड सबको अच्छा कॉलेज में इंजीनियरिंग एंड गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज. तो उसके लिए आई हैव टू वर्क वेरी हार्ड विथ योर कोऑपरेशन. Sir, on group the link is not there. I will just cross check and resend again if I am not. Yes. Done, sir. Okay. Others have also done. No? Yes, sir. Yes, sir. आगे आगे जाते हैं, चैप्टर कुछ नहीं, ये भी इजी. मोशन इन 2D का पार्ट है ये. नाउ एंगुलर displacement. Angular displacement. Suppose this is radius vector at the start. Particle is going to move in a circle. In a circle. So इधर पार्टिकल पी स्टार्ट में इधर था, तो परमानेंटली इधर ही रहेगा क्या कि आगे भी जाएगा? आगे इट विल मूव अहेड. इधर आएगा, इधर आएगा, इधर आएगा, इधर आएगा, फिर एक बार एक चक्कर हो गया तो वापस उधर ही आ जाएगा. तो सपोज आफ्टर सम टाइम पी वो पोजीशन क्यू में आ गया तो उसका रेडियस वेक्टर इधर आ जाएगा ना फिर. Yes. तो ये एंगल को हम लोग बोलते हैं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट. सो कैन आई से द एंगल ट्रेस्ड बाय, ट्रेस्ड मतलब फॉलोड बाय, द एंगल ट्रेस्ड बाय रेडियस वेक्टर in given
इंटरवल ऑफ टाइम, एंगल ये ऐसा आगे जा रहा है, ऐसा आगे 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 जाके इतना एंगल कवर किया ना. So angle traced by radius vector in given interval of time is called as angular displacement. Copy. Angle traced by radius vector in given interval of time is called as angular displacement. No, sir. Okay. Done, no? It's called as angular displacement. It is denoted by theta. Its SI unit is radian. देखो मैथ्स में आप पढ़ने वाले S इक्वल्स टू आर थीटा. S मतलब लेंथ ऑफ आर्क इज इन मीटर, रेडियस इज इन मीटर, थीटा इज इन रेडियन. मीटर मीटर कैंसल हो गया तो रेडियन के लिए कुछ बचा ही नहीं ना, तो इससे बोलते हैं इट इज डायमेंशन लेस. इट इज डायमेंशन लेस. सबको मैंने बताया डायमेंशन के लिए मुझे लेंथ, मास, टाइम ऐसा कुछ तो दिखना चाहिए. ये दोनों कैंसल हो गया तो इट इज डायमेंशन लेस क्वांटिटी. SI unit is radian. It is dimensionless quantity. Radian has no dimension. Done, sir. Now write angular velocity denoted by omega. Velocity is the bar. ये W नहीं है, इसको ऐसा रेट करते हैं ओमेगा. Written heading? Okay, I'm explaining now. Hello, Avan. Hello, Avan. Ane, Ane, you are there? Sir, yes, sir. What is velocity? Only velocity. How to define velocity? Sir, rate of change of displacement. Very good. Rate of change of displacement with respect to time is called velocity. Yes, अब ये वर्ड क्या यूज किया? एंगुलर. तो कौन सा रॉकेट साइंस यूज करूं इसमें? द रेट ऑफ चेंज of angular
डिस्प्लेसमेंट, लीनियर के जगह पे एंगुलर हो जाएगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम is called as angular velocity. It is denoted by omega in magnitude. Omega, its SI unit is radian upon second. Its dimension is m0 l0 per second, मतलब t raised to minus 1. I hope you all followed. Yes, Yes, sir. sir. The rate of change of angular displacement with respect to time is called angular velocity. It is denoted by omega. SI unit is radian per second. जैसा मीटर पर सेकेंड, तो ये रेडियन पर सेकेंड. डायमेंशन m0 l0 t minus 1. So Done, sir. everybody has done. Angular velocity, Yes, sir. rate Sir, of change one of. second. Yes, sir. आराम Done. आराम से लिख लो. Sir, done. Then write angular acceleration. अभी इसको ना अल्फा बोलते हैं, अल्फा, और वेक्टर में लिखना है तो बार, अल्फा बार. As we know, acceleration is rate of change of velocity. So angular acceleration, I will say the Rate of change of angular velocity. very good. Yes. Now I think you're on पूरा एकदम inertia खत्म हो गया आपका, मस्त हो गया. लिखो the rate of change of angular velocity with respect to time is called as angular acceleration. It is denoted by alpha. Its SI unit is radian per second square. Its dimension is m0 l0 t raised to minus 2. m0 l0 t raised to minus 2.
m0 L0 t raised to minus 2. Done, sir. Okay. Everybody has done? Yes, sir. Yes, sir. एक छोटा सा और डेफिनेशन करा देते, एकदम छोटा सा, लास्ट आज के लिए. Nobody will leave the meeting to discuss. Time period. Time taken to complete one revolution is called as time period. It is denoted by capital T. Its SI unit is second. SI unit is second. Can I clear now this one? Yes, sir. ठीक है.